کو آپ امپلیکیٹ کر دیتے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اور پھر بابر ستار صاحب نے ایک تاریخی حکم صادر کیا. انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور چیف کمشنر کو کہ آج سے آپ کی تحویل میں عدالت کی تحویل میں تصور ہوگا. آج بھی شہریار جو ہیں آزاد پھر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں آمنی بس پٹیشن کہ خان چونکہ مختلف صوبوں میں اسلام آباد اور پنجاب اور شاید سندھ میں اسی طرح بلوچستان میں جو شر وکیل ایڈوکیٹ صاحب کا کیس ہے تو نوعیت یہ بنتی ہے کہ ہم خان صاحب کے کیسز کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں لے جائیں تب ہی کہیں جا کے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. ورنہ عیدت کیس میں جون کی 25 تاریخ ہو گئی ہے تو یہ آئے گا تب تک شاید کوئی اور جو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اس کیس میں ٹرائل شروع کر دیں, پھر اس میں گرفتاری ڈال دیں گے, پھر اس میں ضمانت ہوگی, پھر 9 مئی کے تعداد کیسز ہیں. کتنے کیسز میں ہم ان کی ضمانتیں کرواتے پھریں گے. تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے اور یہ عدالتی پروسیس جو ہے یہ ایک امید ہے. اصل امید جو ہے وہ ہے عوامی احتجاج سے. عوام پاکستان جب خان کے لیے نکلیں گے تو تب یہ ادارے, یہ ریاست, یہ نظام جو ہے خان کو رہا کرے. گورنمنٹ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا وہی اٹھایا جانا, مارنا, پیٹنا, تو لہٰذا پاکستان تاحال لقانونیت کی ضرورت. جیسے یہ بتایا کہ اگر پی ٹی آئی کے جیسے لوگ ہیں, اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے عید کے بعد اور آپ سے خان کی ملاقات نہیں ہوتی لیکن عوام کی طرف سے بھرپور ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج میں آپ شامل ہوں, تو عوام کے لیے تو نکل رہے ہیں کہ آپ چارج کرنے میں اور آپ شائننگ اسٹار سمجھے جاتے ہیں. گزارش یہ ہے نا, میں نے کہا ہوا ہے اس پہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. خان کہے گا تو کروں گا اور خان یہ ذمہ داری دے گا تو میں کروں گا. اور اگر خان مجھے نہیں بلاتا ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ مجھے سائڈ لائن ہی ٹھیک ہوں میں, تو میں سائڈ لائن ہی رہوں. سر عوام تو نہیں چاہتی نا کہ آپ سائڈ لائن ہوں. عوام کو بہت سارا پیار, بہت ساری محبتیں, بڑا ہی انہوں نے اس فیصلے کو کنڈیم کیا. لیکن آپ لوگ ایک چیز کا تدارک کریں یا اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اس رویے کا حقدار نہیں تھا جو میرے ساتھ کیا. کیوں کیا, کیا کیا تھا میں نے؟ میں تو صرف اتنا چیخ رہا تھا کہ بھائی یہ بند کریں سازشیں, یہ لیگ پولنگ. میں نے کسی کے ساتھ لیگ پولنگ تو نہیں کی ہے, نہ میں کسی کے خلاف خان کے پاس شکایت لے کر گیا ہوں, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے, نہ میں اس سیاست پہ یقین رکھتا ہوں. وہ جب کوئی ویسی پیچھے پڑ جائے تو اس حوالے سے تو میں نے یہی بات کی تھی. اب اس پہ یہ پبلکلی یعنی میں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں پولیٹیکل کمیٹی سے اور کور کمیٹی سے. اور یہ میں نے رات کو آفر کی. اسی شام کو میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ جی ان کو نکال دیا, تو مجھے ادراک ہو گیا کہ یہ کچھ کھچڑی پک رہی ہے. تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں, اور ریزائن قبول نہیں کیا صبح جی کہ نکال دیں. یہ بے توقیری ہے. پھر میرا بھائی جو تھا وہ کے پی میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو سی ایم ریزائن بھیجا, انہوں نے کہا نہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں. پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والا مسئلہ تھا. یہ کیوں اس طرح ہوا؟ آخر میں اتنی بے توقیری کا حقدار تو نہیں تھا. تو ابھی بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری بے توقیری بھول کے آپ کے بھائی کا معاملہ کیا ہوا؟ صاحب اگر آپ ڈائس پر آ جائیں, باقی دوستوں کی مسنگ پڑ جائے, آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پلیز اگر ڈائس پر آپ وہ ڈیلیبریٹ نہیں کرنا چاہ رہے. باقی سب کی مسنگ پڑ جائے گی. یہ بتایا کہ یہ بحث چل رہی ہے کہ حمود الرحمان جو کمیشن رپورٹ پبلک کرنا ہے, اس میں تو میرا خیال ہے میں ان کے ساتھ ہی یوٹیوبر سے ہماری محبت کچھ زیادہ ہی ہے. اور میں بڑی اہم ہے سر. نہیں یار اہم ہے یا جو بھی ہے, نہیں سر, پبلک آپ کے ساتھ ہے. اور سر یہ جو لوگ اگر آپ اس طرح سے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ تو اگر آپ ان کو اس طرح سے کریں گے تو وہ تو خوش ہوں گے. تو میں تو کہتی ہوں اگنور دیم اینڈ موو. جو آپ کر رہے ہیں کریں, خان آپ کے ساتھ ہے, آپ خان کے ساتھ ہیں. ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے کہ پیاز دی ہوئی خوب نیاز دی ہوئی. پیاز بھی کھلاؤ نا تو تھوڑا ذرا
इज्जत से दो। दोस्त हमें भी थोड़ा सा दे रहे हैं। छोड़े बातों को। चलें, शुक्रिया जी, thank you। ये नहीं छोड़ा जा सकता है, आप पानी का ये नहीं छोड़ा जा सकता है, बातों को समझ गए ना? Thank you जी, बहुत के साथ शुक्रिया। कोई नहीं जी सकता। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक मिनट यार, थैंक यू सर जो मैंने कोई बात करनी ही नहीं है, आप लोगों ने घेर दिया तो मैंने बातें कर दी। बस वो शेयर हो जाएगी। ये माइक किसका है? माइक, अच्छा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल रह गया। और ज्यादा बैकग्राउंड बताया करें, कोई हम भी आपसे बात कर सकें। यार मेरी बात सुनो यार कैमरा बंद प्लीज, ऑफ कैमरे का मतलब ये बंद करो यार। आज मैंने कौमी असम्बली में भी इस पे बात की है। कम और बेश गुज़िश्ता 29 सालों में 36 अरब रुपए जो हैं वो लकी सीमेंट ने हमारे इलाके के दबाए हुए हैं। इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका है। इंडेक्स जो है पसमानगी का खैबर पख्तूनख्वा में ये सेकंड लोवेस्ट पसमानदा ज़िला है। बदआमनी का दौरा है, वहाँ पे मिलिटेंट्स फिर रहे हैं, आर्मी पड़ी हुई है, जंग व जदल मेरे इलाके में जारी है। इन तमाम हालात में मैं अपने इलाके की जो लोग यहाँ पे आए हैं इनके साथ आज़ारी यकजहती भी करता हूँ और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो भी इसका नोटिस लें। क्यों कर लकी सीमेंट जो है वो हमारी इस हक पे बैठी हुई है। आज मैंने नेशनल असेंबली में इस पे बात की है। दूसरी बात जो है, जो इन्होंने अमेंडमेंट की है नेब ऑर्डिनेंस में और 14 दिन से 40 अयाम पे रिमांड ले गए हैं, ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है। ऑर्डिनेंस के ज़रिए जबकि असेंबली का इजलास बुलाया जाना था, ऑलरेडी ऐसी शिके माजी में ऐसे फैसले आए हैं जिसमें कहा गया है कि एक फेर के इर्तिकाब के बाद इस तरह की कानून साजी करना कि पहले से हुए फेल को जो है मुतासर किया जा सके तो वो अल्ट्रा वायरस होते हैं। और ये खान साहब की जो अभी नया नेब केस शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं। आज नेशनल असेंबली में इस पे बात हुई है और इसकी मजम्मत करते हैं। तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ के इदारे हैं, उनको भी इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब सनम जावेद को देखें, सनम जावेद को एक दफ़ा फिर इन्होंने जो है ATC गुजरावाला में पेश कर दिया। केसेस का पता ही नहीं लगता है। अगर कोई शख्स मतलूब है किसी भी इदारे को या पुलिस को, तो कानून ये कहता है कि बैक वक्त उसकी गिरफ्तारी तमाम केसों में तस्वुर होगी। 1 साल से ये रिहा हो रहे हैं और बाद अज़ा गिरफ्तार होते हैं। कानून का भी मजाक बनाया हुआ है और आज अफसोस इस अमर पे हुआ कि जज साहब ने इसके बावजूद भी 4 रोज़ का रिमांड दे दिया खातून का। तो मुल्क में वही अफरा तफरी और जंगल का कानून है और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो है बदस्तूर पामाल हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आज ऐलान हुआ है कि एहतजाज किया जाएगा, ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा, क्या शेर अफजल मरवत उस एहतजाज का हिस्सा होगा तो क्यों नहीं, तो फिर क्यों नहीं? मैंने तो पहले रोज़ से कहा है कि एहतजाज में या पार्टी की किसी भी दी गई ड्यूटी में मेरी शिरकत जो है वो ज़रूर खान का हुक्म होगा, लेकिन मैं खान साहब से मुलाकात करूंगा और खान साहब जब बुलाएंगे तो इसके बाद मैं हर किस्म के हुक्म की जो है वो तामील करूंगा। अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर हैं आप, ये तो चलो सियासी मामलात हैं कि नशीबो फराज या पार्टी में इश्यूज होते रहते हैं। पार्लिमानी सतह पर आप कमेटियाँ मान रही हैं या दीगर मुल्की मामलात हैं जिनमें पार्लिमान का या मेंबर असेंबली का किरदार है, उसके लिए भी एक्टिव रहेंगे या उससे भी पीछे हटेंगे? पार्लिमानी कमेटियों में मैंने कोई मेंबरशिप की अब कोई दिलचस्पी नहीं है और जहाँ तक ईवान के अंदर जो बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने मेरा किरदार या मेरे फ़राइज़ तकाजा करेगी वो किरदार में अदा करता रहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा शेर अफजल मरवत साहब, आप क्या समझते हैं, आप नाराज़ हैं किसी से पार्टी के अंदर? गिले शिकवे किससे हैं आपको सबको पता है, जबान पे क्यों नहीं आता? नाराज़ तो कह ले, लेकिन मैं इस रवैये का हकदार नहीं था जो मेरे साथ किया गया।
मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने किसी की टांग नहीं खींची थी, न मैंने किसी के खिलाफ साजिशें की हैं, न कभी आज तक ज़िंदगी में की है, न इस सियासत पे यकीन रखता हूँ। मैंने तो पार्टी की के लिए खिदमत अंजाम दी, रिस्क लिए, मेहनत की, काविशें की। तो यूँ एकदम जो बेतनकीरी मेरी हुई और जो मेरी बेइज्जती हुई, वो मेरे लिए इंतहाई परेशानी का बाइस है और मैं इस पे इंतहाई खफा हूँ। बाकी सियासत और ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन बेतौकीरी किसी सूरत में जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सकता। मरवत साहब, हर कोई आपकी टांगें खींचता है, लेकिन खान साहब के साथ आप उस वक्त खड़े रहे बहुत मुश्किल वक्त में, तो खान साहब को तो आपके साथ खड़ा होना चाहिए था। खान साहब क्यों पीछे आए? खान साहब हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। खान साहब बताया करते थे, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने खुद कहा कि जी आपकी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन साथ में शाबाशी दी कि पार्टी के अंदर सियासत में अगर आपकी शिकायत ना आती तो तब मैं ये समझता कि गोया तुम इतने कमज़ोर आदमी हो। शिकायत आती हैं तो बंदे को पता चलता है कि वो कोई डायनामिक है। तो शिकायतें, लेकिन खान साहब मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, और उन्होंने हमेशा मेरी सताइश भी की, मेरा हौसला बढ़ाया। लेकिन आखिर में जो हुआ, क्योंकि वो एक तरफा फैसला था, मुझे सुना नहीं, और फिर उस पर जो अमल दरामद कराया गया, इन चीज़ों ने मतलब ये है कि मुझे तकलीफ दी है। मरवत साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था एक तकरीर में कि 1958 से एहतसाब होना चाहिए। तो बंदे को पता चलता है कि वो कोई डायनामिक है। तो शिकायतें, लेकिन खान साहब मेरे साथ खड़े रहे हमेशा, और उन्होंने हमेशा मेरी सताइश भी की, मेरा हौसला बढ़ाया। लेकिन आखिर में जो हुआ, क्योंकि वो एक तरफा फैसला था, मुझे सुना नहीं, और फिर उस पर जो अमल दरामद कराया गया, इन चीज़ों ने मतलब ये है कि मुझे तकलीफ दी है। मरवत साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था एक तकरीर में कि 1958 से एहतसाब होना चाहिए। PTI के उमर अयूब और आपके चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गोहर खान साहब, बोर्ड के शुरू हो गए कि जनरल अयूब साहब का एहतसाब नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि जनरल अयूब साहब का एहतसाब होना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम डिक्टेटरों का हिसाब होना चाहिए। आपकी पार्टी के खिलाफ क्यों नारे लगा रही थी पार्लियामान में कि अयूब खान साहब का? क्योंकि नहीं, मैं तो एक जमहूरियत पसंद आदमी हूँ। हम रिश्तेदारियाँ नहीं निभाते हैं असूलों के लिए। ऐवान के अंदर रूल ऑफ लॉ और कानून की हुक्मरानी के लिए कतई नज़र कौन किसी का रिश्तेदार हैं, लेकिन असूलन एक बात अगर ज़िया-उल-हक के लिए कही जाएगी, मुशर्रफ के लिए कही जाएगी, या खान के लिए कही जाएगी, तो वही अयूब खान साहब के लिए भी कहना पड़ेगी। आपने साइड लाइन लगाने की भी बात की कि आपको साइड लाइन लगानी है, आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने आपको साइड लाइन लगाया, कुछ बताएंगे इस बारे में? साइड लाइन तो मैं लग चुका हूँ, बड़े आराम से हूँ, और मैं अभी 10-12 दिन बैरून मुल्क रह के आया हूँ, अब तरोताज़ा हूँ। और साइड लाइन में अगर किसी को खैरियत मिली है तो साइड लाइन ही में ठीक हूँ। मरवत साहब, ये बताइए कि जो अहमदुर्रहमान कमीशन है, बहुत सारे PTI के रहनुमा ये कहते हैं कि इसको पब्लिक करना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? जी, अहमदुर्रहमान कमीशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के साथ में खड़ा हूँ, और अजहर मशवानी के 2 भाइयों को उठाया गया है, शाहरियार बुखारी के भाई को उठाया गया है। शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। खान का बयानिया वो हमारा बयानिया है। खान ने जो कहा है, अगर कोई डरता है, पीछे हटता है, वो बुज़दिल होगा। लेकिन मैं खान के हर किस्म के नैरेटिव के साथ खड़ा हूँ, और उस सोशल मीडिया टीम के साथ भी खड़ा हूँ जिनको आज डराया धमकाया जा रहा है। सर, ये खान का बयानिया तो ठीक है, 1971 के बारे में उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कहा है कि सियासी तौर पर जिसको अवाम ने मुंतखब किया था उस वक्त उसका हक़ आप देना चाहिए था। इस वक्त PTI के अपने रहनुमा इस बयानिए से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम से दूर होते जा रहे हैं, तो ये किसी किस्म का दबाव है इन रहनुमाओं पे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं बयानात की वजह से हमारे दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि खान की हर ट्वीट, हर स्टेटमेंट के साथ हम खड़े हैं। इंसाफ के जितने भी रहनुमा और लीगल जो टीम खान के हवाले से स्ट्रगल कर रही है,
खान को जल्द अज जल्द जेल से बाहर निकालने के लिए रहनुमाओं का किरदार और लीगल टीम का किरदार आप किस तरह देखते हैं? ज़ाती तौर पे मैं मुतमईन नहीं हूँ। पार्टी के खान की रिहाई के लिए किरदार से भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो एहतजाज के वादे हमने कौम के साथ किए, वर्कर के साथ किए, उनको हम पूरा नहीं कर सके। पहले रमज़ान के बहाने हुए, फिर ईद के बाद कहा गया ईद गुजर गई, बड़ी ईद आ गई, जलसे करने थे, हर जगह पे जलसे की। बहाना ये होता है कि इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त किस चिड़िया का नाम है? हमने कब इजाज़त ली थी? 9 मई के बाद जो जलसे पूरे मुल्क में किए, ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा हो जाता है, या 1-2 छापे हो जाते हैं, या बागम दौड़ या फिर हथकड़ियाँ हो जाती हैं, लेकिन ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी इस मुल्क में रहने के लिए। तो लिहाजा ये अभी ये जो जलसे नहीं हो रहे, देखिए एक वाइड चीज़ जो खान की रिहाई के लिए इंतहाई कैटलिस्ट हो सकती है, वो पब्लिक प्रोटेस्ट है, मास पब्लिक प्रोटेस्ट, एहतजाजी रैलियाँ, जलसे जुलूस, ये होने चाहिए, अदालत में होने चाहिए। नहीं देते हैं इजाज़त, आवाम तो निकलने के लिए तैयार हैं और लीडरों का इंतजार कर रहे हैं कि लीडर होंगे, और लीडर जिधर भी होता है अवाम हजारों की तादाद में निकल आते हैं। माजी के तजर्बों ने साबित किया है। पार्लियामेंट के अंदर आपके इस वक्त उमर अयूब साहब जो हैं वो किरदार सही अदा कर रहे हैं? यार मैं उमर अयूब साहब के किरदार पे मुझसे सवाल न करें। लीडर है सर। नहीं देखिए, अब पार्लियामेंट के अंदर देखिए अब आप ये कब लग रहा है, मैं आ गया हूँ, मैंने यही कहा था कि मुझसे इन मामलात पे सवाल न अच्छा चलिए, सिर्फ इतना बता दें, आपके भाई मशीद थे, उन्हें एकदम हटा दिया गया। आप तो बड़े दोस्त थे वज़ीर आला के भी, और दूसरा गवर्नर के और वज़ीर आला के दरमियान जो चल रहा है, इस दोनों पे दो इन बात। इस सवाल का जवाब मैंने उधर अभी आपको दे दिया और आपने रिकॉर्ड भी किया हुआ है। ये मीडिया की मज़ीद खबर न बनाए। बयानात चल रहे हैं जो हो गया, मेरी जान, मैंने जवाब दे दिया। मरवत साहब, खान साहब आपको बुलाएंगे मुलाकात के लिए, जाएंगे, या वैसे भी आप रिक्वेस्ट करेंगे खान साहब से भी मिलना चाहता हूँ? नहीं, मैं दिल तो मेरा करता है कि खान साहब के पास खुद जाऊं और रिक्वेस्ट करूं, लेकिन डरता उस दिन से हूं कि अगर फिर इनकार कर दिया तो शायद मेरे तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। वो लगे हुए